شام کو رملہ کھڑکی میں کھڑی نصیر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک گاڑی واپس نہیں لایا تھا۔ کہیں میں نے اسے گاڑی کی چابی دے کر غلطی تو نہیں کر دی؟ اگر میری گاڑی لے کر بھاگ گیا تو مجھے کسی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب تک تو گاڑی ٹھیک ہو گئی ہوگی، لیکن نصیر آیا نہیں۔ ڈرتی ڈرتی کمرے سے باہر نکلی اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ اندر سے ایک ماڈرن سی لڑکی باہر آئی۔ یس، اینی پرابلم؟ جی ایک مسئلہ ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ شور، آپ بتائیں تو صحیح، اگر ہو سکا تو ضرور مدد کروں گی۔ ایکچولی صبح یونیورسٹی میں میری گاڑی کے چاروں ٹائرز کی کسی نے ہوا نکال دی تھی اور میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے لفٹ دی اور ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد میری گاڑی کی کیز لے گیا کہ گاڑی ٹھیک کروا کر واپس دے جائے گا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ میری گاڑی لے کر بھاگ نہ جائے۔ رملہ کی پوری بات سننے کے بعد اس لڑکی نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ رملہ کو تھوڑی حیرت ہوئی اسے ہنستے دیکھ کر۔ میں پریشان ہوں اور آپ ہنس رہی ہیں۔ ہنسوں نہ تو اور کیا کروں، تم نے بات ہی ایسی کی ہے۔ وہ تمہارا کلاس فیلو ہے اور اس کے پاس تمہاری گاڑی ہے، کوئی پرس نہیں جو وہ لے کر بھاگ جائے گا۔ تھوڑا انتظار کرو، آ جائے گا واپس۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جی اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اوہ سوری، مائی سیلف رملہ۔ بہت پیارا نام ہے آپ کا رملہ۔ مائی سیلف مبین۔ اس نے رملہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رملہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری اف آئی ڈسٹرب یو۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیئر، آؤ اندر بیٹھو، بلکہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس اجنبی جگہ پر کسی نے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ورنہ مجھے تو لگتا تھا میرا اس کمرے میں ہی دم گھٹ جائے گا۔ میں جاب کرتی ہوں، آج طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی تو چھٹی کر لی۔ اچھا کیا آپ نے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کریں، میں آپ کے ساتھ والے روم میں ہوتی ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، بس کیا کروں یار، مجبوری ہے نوکری کرنا۔ گھر پر 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں اور ماما ہیں۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد ان سب کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں، کیونکہ میری عمر کی لڑکیاں تو گھر بسائے بیٹھی ہیں اور میرے سر پر پورے گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ خیر چھوڑو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، تم اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ۔ جی میں رملہ، کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کے فون کی رنگ ٹیون بجی۔ کوئی انجان نمبر ہے۔ ڈرتے ڈرتے کال پک کی۔ جی کون؟ نصیر بات کر رہا ہوں، ہاسٹل کے باہر کھڑا ہوں، آ کر اپنی گاڑی لے جائیں میڈم۔ تھینکس گاڈ۔ رملہ نے سکھ کا سانس لیا۔ لے آیا ہے وہ میری گاڑی، خدا حافظ۔ تیزی سے کمرے سے باہر آ گئی اور ہاسٹل کے باہر کھڑی اپنی گاڑی دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ایک شارٹ ڈرائیو ہو جائے؟ نصیر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے مسکراتے ہوئے بولا۔ غلط مت سمجھو، تمہاری تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گاڑی ٹھیک ہوئی یا نہیں، اچھی طرح دیکھ لو۔ رملہ نہ چاہتی ہوئی بے بسی سے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مال کا چکر لگا کر نصیر نے گاڑی دوبارہ اسی جگہ ہاسٹل کے سامنے روک دی اور کیز رملہ کے حوالے کرتا ہوا گاڑی سے نکل گیا۔ گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک پلٹا۔ ویسے اخلاقیات کے طور پر تمہیں مجھے شکریہ کہنا چاہیے اور مجھے میرے ہاسٹل ڈراپ کرنے کی آفر کرنی چاہیے تھی، ہے نا؟ شکریہ تو میں نہیں بول سکتی کیونکہ یہ کام تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور جہاں تک بات تمہیں ڈراپ کرنے کی ہے تو تمہاری ٹانگیں سلامت ہے، پیدل چل کر جا سکتے ہو، 2 منٹ کا راستہ ہے۔ رملہ بنا کوئی لحاظ رکھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتی ہوئی گاڑی پارکنگ کی طرف لے گئی۔ نصیر مسکراتے ہوئے اپنے ہاسٹل کی طرف چل دیا۔ رملہ گاڑی پارک کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی کہ دوبارہ نوک ہوا۔ باہر مبین تھی۔ ہیلو، تم نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ چاہیے ہو تو تمہیں یاد کروں۔ سو آئی ایم ہیئر، نیڈ یور لٹل ہیلپ۔ جی جی ضرور، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شور۔ مبین فوراً اندر آئی اور پورے کمرے کو ایک نظر دیکھا۔ واو، بہت اچھی طرح سیٹنگ کی ہے تم نے روم کی، میرے کمرے میں تو ادم مچا ہے۔ خیر، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی تھی۔ رات کو میری کلیگ کی انگیجمنٹ ہے، تم ساتھ چلو گی؟ پلیز انکار مت کرنا، مجھے اکیلے جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ سوچ رہی تھی کوئی ساتھ ہو، اچھا ہوا تم مل گئی، خوب انجوائے کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ چلی تو جاتی، لیکن مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کی پارٹیز میں جانے کی، اور ویسے بھی یہاں کا ماحول کچھ الگ ہے۔ میں عام سی لڑکی ہوں اور میرا حلیہ کوئی پسند نہیں کرتا، تو میں ایسی جگہوں پر جانے سے ذرا پرہیز ہی کرتی ہوں۔ لو جی کر لو گل، تم عام سے بھی بہت خاص ہو، اور جہاں تک بات ماحول کی ہے تو آہستہ آہستہ تم بھی اس ماحول میں ڈھل جاؤ گی۔ نہیں، مجھے نہیں ڈھلنا ایسے ماحول میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں۔ تو پھر تم جیسی ہو ویسی ہی رہو نا، دنیا کے مطابق خود کو مت بدلو۔
बल्कि जो हो वही जाहिर करो। एक अच्छा सा ड्रेस पहनो और लाइट सा मेकअप लगाकर तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। मुबीन जबरदस्ती ऑर्डर देती हुई कमरे से बाहर निकल गई और रमला इसे जाती देखती रह गई। ये अजीब जबरदस्ती है, अभी हमें मिले 1 घंटा भी नहीं हुआ और मुझे ये साथ जाने को बोल रही है। क्या करूं, मुझे जाना चाहिए या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर इनकार करूं तो नाराज हो जाएगी और अगर साथ गई तो मेरे लिए कोई मसला ना बन जाए। चलो चली जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मुस्कुराती हुई अलमारी की तरफ बढ़ी और ब्लैक सूट निकालकर तैयार हो गई। मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल और बाल स्ट्रेट करते हुए लाइट सी लिपस्टिक, काजल और हल्का सा ब्लश ऑन लगाकर खुद पर परफ्यूम छिड़क कर दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया। अपना पर्स, मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाए रूम लॉक करके कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि मुबीन पहले से ही कमरे से बाहर इसका इंतजार कर रही थी। वाओ, यू आर लुकिंग सो क्यूट। ऐसे ही डर रही थी कि यहाँ का माहौल अलग है, अच्छी लग रही हो, बल्कि सिर्फ अच्छी नहीं, सबसे अलग लग रही हो। मुबीन की तारीफ पर रमला फीका सा मुस्कुरा दी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप भी इस ब्लू मैक्सी में बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक्स शोना, ये रहा एड्रेस, जल्दी ड्राइव कर लो, हम लेट हो रहे हैं। फंक्शन घर के गार्डन में अरेंज किया गया था। रमला ने गाड़ी पार्क की और गाड़ी से बाहर निकलकर मुबीन के साथ घर में दाखिल हो गई। अंदर पहुंचने की देर थी कि मुबीन रमला को एक साइड पर रखी कुर्सी पर बिठाकर ऐसी गायब हुई जैसे यहाँ है ही नहीं। रमला बेचारी क्या कर सकती थी, इतने मेहमानों में फंसी चुपचाप बैठी रही। अनजान जगह और अनजान लोग, कुछ अजीब सी हालत थी इसकी। किसी जानी पहचानी आवाज पर तेजी से पलटी। जहे नसीब, तुम यहाँ कैसे? सामने नसीर था, ब्लैक पैंट शर्ट पहने, बहुत हैंडसम लग रहा था। कुर्सी खींचते हुए दोनों हाथ मेज पर टिकाए रमला को देखता रह गया। अब ये मत कहना कि मैंने इसलिए ब्लैक कलर पहना है कि तुमने भी ब्लैक कलर पहना है। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि तुम यहाँ आने वाली हो। इसकी बात पर रमला मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे ब्लैक कलर पहनने से। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरी मुलाकात एक बार फिर तुमसे हो जाएगी। वो कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है। मैं अभी सोच रहा था कि काश इस पार्टी में मुझे कोई हसीन पार्टनर मिल जाए, और देखो मेरी दुआ कबूल हो गई। तुम मुझे मिल गई, वो भी सेम एड्रेस में। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। तुम्हारी बकवास करने की आदत जाएगी नहीं। इसे किस्मत नहीं, इत्तफाक कहते हैं। बकवास नहीं, मेरे दिल की आवाज है। अब तो मान लो कि मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल हूँ। देखो ना, किस्मत भी बार बार हमें मिला रही है। बार बार हमें किस्मत नहीं मिला रही मिस्टर। सुबह मेरी गाड़ी तुमने खुद खराब की थी और अब मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आन पहुँचे हो। बंद करो अपनी ये फजूल हरकतें। तुम्हारा पीछा? कौन, मैं? तुम्हें क्या मैं इतना वेला लगता हूँ? मेरे कजन की एंगेजमेंट पार्टी है, अलबत्ता तुम मेरा पीछा कर रही हो। ये हो सकता है? शट अप, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, अपनी एक फ्रेंड के साथ आई हूँ। इसने कहा था कि इसकी कुलीग की एंगेजमेंट पार्टी है। फ्रेंड कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, मुझे यहाँ बिठाकर खुद कहीं चली गई है शायद। वाह, क्या कहने हैं तुम्हारी फ्रेंड के, तुम्हें साथ लाकर यहाँ अकेला बोर होने के लिए छोड़ गई। डोंट वरी, आओ मेरे साथ, अपनी सिस्टर्स और कजन्स से मिलवाता हूँ। क्या? ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रहा हूँ, मेरी सारी फैमिली है यहाँ पर, मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, मुझे नहीं मिलना तुम्हारी फैमिली से, तुम जाओ यहाँ से, मैं यहीं ठीक हूँ। ओके, एज यू विश। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे, एक कॉल पर बंदा हाजिर होगा। बदले में रमला ने इसे घुरी से नवाजा तो चुपचाप वहां से उठकर चला गया। अब क्या मैं अकेली यहाँ बैठी रहूंगी? अजीब है ये आपी, मुझे यहाँ बिठाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। कितना अजीब लग रहा है, यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। यहाँ से उठकर भी नहीं जा सकती, कॉल के बहाने जाती हूँ यहाँ से। रोशनी का नंबर डायल किया और हेलो हेलो करती हुई अपना बैग उठाकर गार्डन में बनी लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई छत पे आ रुकी और सुख का सांस लिया। क्या हुआ रमला बीबी? मुझे तो आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है तुम्हारी आवाज रोशनी, बस कुछ मजबूरी थी मेरी, एक जगह फंस गई हूँ बहुत बुरी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? सब खैरियत? अगर कोई मसला है तो मैं अभी बुआ जी को बताती हूँ, आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं रोशनी, रुक जाओ, अम्मा को बताने की जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरे साथ वाले कमरे में एक लड़की रहती है, इसकी दोस्त की मंगनी है आज, वहीं आई हूँ इसके साथ, लेकिन वो मुझे यहाँ बिठाकर खुद अपनी दोस्तों के साथ मसरूफ हो गई।
तुम्हें पता है मुझे रश वाली जगहों पर जाने की आदत नहीं है। बहुत जिद कर रही थी तो आ गई मैं इसके साथ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो ठीक है बीबी जी, लेकिन आप ठीक तो हैं ना? कोई बड़ा मसला तो नहीं है? नहीं रोशनी, कोई बड़ा मसला नहीं है, बस मैं अकेली बैठी थी तो फोन का बहाना बनाकर मेहमानों के दरमियान से उठकर ऊपर आई हूँ। एक मिनट रोशनी, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। अचानक इसकी नजर सामने स्टेज पर खड़े शख्स पर पड़ी तो तेजी से नीचे बैठ गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? थोड़ा सा ऊपर हुई और तसल्ली के लिए दोबारा उठी कि शायद इसने किसी और को देखा, लेकिन ये इसका वहम नहीं, हकीकत थी। मलिक हमदान स्टेज पर दुल्हे से मुस्कुरा कर बातें करते हुए स्टेज से नीचे उतरकर बाहर की तरफ चल दिया, लेकिन फिर वापस पलटा। नसीर इसके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। एक्सक्यूज मी सर, आप इस तरह तो नहीं जा सकते, अगर आए हैं तो खाना खा कर जाएं। नहीं, मुझे इमरजेंसी है, और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे घर नहीं आया बल्कि अपने क्लास फेलो को मुबारकबाद देने आया था। अपने जल्दी जाने की वजह इसको बता चुका हूँ। ओह सही, आपकी बात ठीक है, लेकिन अपनी फ्रेंड को तो लेते जाएं। आए दोनों साथ हैं और अब इसे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। कौन सी फ्रेंड? मैं कुछ समझा नहीं। हमदान ने नासमझी से जवाब दिया। मिस रमला की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा तो कोई फ्रेंड नहीं है आपकी, तो मैं इसी की बात करूंगा ना। वैसे बड़ी कमाल की, जब जिसके साथ मौका मिले मौका छोड़ती नहीं, बिना इनकार के साथ चल पड़ती है। जैसे सुबह मेरे साथ थी और शाम आपके साथ गुजार रही है। शट अप, वो ऐसी लड़की नहीं है। अगर अभी मेहमानों का ख्याल ना होता तो जुबान खींच लेता मैं तुम्हारी। और जहाँ तक बात इसके यहाँ आने की है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो मेरे साथ यहाँ नहीं आई। आइंदा इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। नसीर बेबाकी से मुस्कुरा दिया। तो इसका मतलब वो आपके साथ नहीं, किसी और के साथ आई है। शी इज सो चीप। अगर तुमने जुबान से इसके लिए एक लफ्ज भी निकाला तो यही जुबान काट दूंगा मैं तुम्हारी। मेरी नरमी का फायदा मत उठाओ। हमदान बामुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला। क्यों, आपको कोई तकलीफ हो रही है मिस्टर हमदान? आखिर क्या रिश्ता है आपका इससे? बताएं जरा, मुझे भी तो पता चले। मेरा इसके साथ जो भी रिश्ता हो, तुम्हें इससे क्या? ये मेरा जाती मसला है। तुम अपने काम से काम रखो, बेहतर है तुम्हारे लिए। अच्छा, लगता है कुछ ज्यादा ही जाती रिश्ता है आप दोनों के दरमियान, तभी तो सिर्फ एक मुलाकात में आप इसके दीवाने हो गए हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हमदान आपे से बाहर हो चुका था। गुस्से से नसीर को गिरेबान से खींचा। मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा हो यहाँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। आइंदा ऐसी बात मत करना रमला के बारे में, वरना मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। नसीर को गुस्से से धकेलते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। यह सब क्या हो रहा है? ये दोनों झगड़ क्यों रहे थे? रमला इसी सोच में गुम थी कि किसी ने इसका बाजू थाम कर अपने सामने खड़ा किया। सामने हमदान था। वो रमला को छत पे खड़े देख चुका था। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप होते कौन है पूछने वाले? चुप। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, हमदान ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। बिल्कुल चुप, जितना पूछा है उतना जवाब दो। क्या कर रही थी यहाँ? फ्रेंड के साथ आई थी। हमदान का गुस्सा देखकर रमला बामुश्किल इतना ही बोल सकी। कहाँ है फ्रेंड? हमदान के एक और सवाल पर घबरा कर साइड से निकलने ही लगी थी कि हमदान रास्ते में आ गया। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। मैंने पूछा, कहाँ है आपकी फ्रेंड? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो मुझे नीचे छोड़कर खुद कहीं चली गई हैं। इतने रश में मैं इन्हें नहीं ढूंढ सकती थी, इसलिए ऊपर आकर बैठ गई। कब से जानती हैं इस फ्रेंड को? अब की बार हमदान का लहजा थोड़ा नर्म था, लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार था। आज, मेरा मतलब कुछ देर पहले मुलाकात हुई इनसे। मेरे साथ वाले रूम में रहती हैं। व्हाट यू मीन? कुछ देर पहले ही मुलाकात हुई और इसके साथ पार्टी में भी आ गई। पता नहीं है हालात कितने खराब हैं आजकल। इस दौर में औरत को मर्द से ज्यादा औरत से खतरा है। अफसोस है मुझे कि आप मर्द को पहचानने में तो कामयाब रही, लेकिन एक औरत को समझने में गलती कर दी। आए मेरे साथ। हमदान ने इसका हाथ थाम लिया और खींचते हुए नीचे ले आया। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? सब देख रहे हैं, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दें। आपकी दोस्त को ढूंढते हैं, अच्छी तरह देखें इर्द गिर्द। अगर यहीं आई है तो यहीं कहीं होगी। रमला इधर उधर देखती चली गई। आखिरकार इसे मुबीन नजर आ ही गई। वो कोने में एक कुर्सी पर एक लड़के के साथ बैठी सिगरेट पी रही थी। रमला के रुकने पर हमदान भी रुक गया और उसी तरफ देखने लगा। क्या यही है आपकी दोस्त? जी, रमला ने शर्मिंदगी से सर झुकाए जवाब दिया। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब कुछ समझाने की जरूरत है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। अब भी रुकना चाहती हो यहाँ या फिर चलेगी?
रमला सर हिलाती हुई हमदान के पीछे चलती गई। अब इसे किसी से डर नहीं लग रहा था। हमदान के हाथ की मजबूत गिरफ्त में अपना हाथ देखती हुई चलती गई। पार्किंग में पहुंचकर हमदान ने इसका हाथ छोड़ दिया और इसकी तरफ पलटा। खुद चली जाएंगी या मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, शुक्रिया। तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ी, ड्राइविंग सीट संभाली, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, गुस्से से गाड़ी से बाहर निकली और टायर्स चेक किए तो सारे टायर्स फ्रीज हो चुके थे। नहीं, फिर से नहीं, ये नसीर नहीं सुधरेगा। हमदान अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन रमला को परेशान देखकर वापस आ गया। क्या हुआ? रमला ने टायर्स की तरफ इशारा किया। मैं जानता हूँ ये किसका काम है। खैर आए मेरे साथ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जी। रमला ने गाड़ी से अपना बैग निकाला और गाड़ी लॉक करती हुई हमदान के पीछे चल दी। हमदान ने इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। छत से लेकर गाड़ी तक सारे मनाजर नसीर अपने फोन में रिकॉर्ड कर चुका था। दोनों को जाते हुए, मुस्कुराते हुए, बालों में हाथ फेरता हुआ छत से नीचे आ गया।